So in the previous video we have studied about some diseases we have completed our malaria, and also we have taken the disease in the previous video we have taken some diseases which are caused by parasites. We have completed the malaria and also giardiasis and amoebiasis. Okay. Now today we will see the disease, that is trypanosomiasis. Trypanosomiasis. Okay. So the causative agent for this disease is Trypanosomia brucei gambians. This is the name of the parasite. Okay, Trypanosomia brucei gambians. This is the causative agent for trypanosomiasis. Okay, now this agent or this parasite is very much common in Africa, especially in Western Africa. The presence of this parasite is very much common, and also this disease trypanosomiasis, we call it as sleeping sickness. Sleeping sickness because this bacteria or sorry not bacteria, this parasite, it affects our sleeping cycle. हमारा जो 24 आवर्स का स्लीपिंग साइकिल होता है, इसको ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देता है. That's why this disease is known as sleeping sickness. And due to the predominance of this parasite in Africa, this disease is also called as African sleeping sickness. Okay, African sleeping sickness. Now, this is the causative agent Trypanosomia brucei gambians. And one more thing, इसमें एक reservoir भी होता है. Reservoir means the reservoir for this parasite. I tell you afterwards. Just remember that here one reservoir is also present. Reservoir organism we can say. Reservoir organism which is antelope. And this parasite will not affect this reservoir. Okay, this antelope and some other animals can also be the reservoir, like cow. This can also be act as a reservoir for this parasite, but these do not affect, or this parasite do not affect these reservoirs. Okay, now there is one more agent, or we can say like in malaria we have talked about the vector. एक वेक्टर होता है. ओके, वो वेक्टर आएगा जब हमको बाइट करेगा, देन वी विल बी अफेक्टेड फ्रॉम मलेरिया. लाइक दिस यहाँ पर में एक वेक्टर होता है. ओके, सो व्हाट विल बी दैट वेक्टर, और वी कैन से दैट वन कैरियर इज प्रेजेंट. दैट कैरियर विल बी सेसे फ्लाई. Okay, that carrier is say fly. This is the carrier जिसके कारण we are suffering from the African sleeping sickness. Okay, now the life cycle of Trypanosomia brucei gambians is a digenetic type of life cycle. Digenetic type of life cycle means they are involving two hosts, and one host will be the human being and another one will be the say fly. Okay,
एक होस्ट हुआ उसका ह्यूमन बीइंग और एक होस्ट हुआ उसका सेसे फ्लाई। तो अब हम देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल इसकी कहां से स्टार्ट होती है? वी कैन टेक वन सेसे फ्लाई is infecting one healthy person. एक फ्लाई हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर रही है, हाउ इट विल बाइट दैट हेल्दी पर्सन, ओके, तो उसको काटेगी तब वो अफेक्टेड हो जाएगा, ओके। नाउ when this सेसे fly bites this healthy person, तो इसने इसके ब्लड में कुछ पैरासाइट्स डाले होंगे तभी ये हेल्दी पर्सन अफेक्टेड होगा, ओके। व्हाट विल बी दैट पैरासाइट्स? दैट विल बी मेटासाइक्लिक trypanomastigotes. That will be metacyclic trypanomastigotes. These are the parasites. ये parasites हैं, या we can say this is the infective stage to affect any human being. ये इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है। लाइकवाइज वी हैव स्टडीड इन मलेरिया। मलेरिया में इन्फेक्टिव स्टेज क्या था? स्पोरोजोइट। तो स्पोरोजोइट के जैसा इनका इन्फेक्टिव स्टेज है मेटासाइक्लिक। रिमेंबर द नेम मेटासाइक्लिक। मेटासाइक्लिक ट्राइपेनोमेस्टिगोट्स, दिस विल बी द इन्फेक्टिव स्टेज। और जब इस स्टेज में इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होगा और जब इस स्टेज में आके ये पैरासाइट हमारी बॉडी में एंटर होगा, देन वी विल बी सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज, ओके। नाउ मेटासाइक्लिक ट्राइपेनोमेस्टिगोट्स हमारी बॉडी में एंटर हुआ बाय द बाइटिंग ऑफ दिस सेसे फ्लाई। नाउ अब ये मेटासाइक्लिक ट्राइपेनोमेस्टिगोट्स कहाँ आएगा? इनटू आवर ब्लड। ब्लड में आने के बाद में दे परफॉर्म द बाइनरी फिजन and increased their number, okay, binary fission and increased their number. Now after increasing their number there are the two stages. ये अपना नंबर बढ़ाएगा पर फिर भी रहेगा तो ब्लड में ही ना, ओके। नाउ ये अपने ब्लड में प्रेजेंट है और इसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या होगा? दो कंडीशंस आएगी, या तो ये हमारे ब्लड में ही रहेगा और इसकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है दैट दिस पैरासाइट इज गोइंग टू अफेक्ट अवर सीएनएस, ओके। ये डायरेक्टली जाके हमारे सीएनएस को अफेक्ट करता है और हमारे सीएनएस के अफेक्ट होने के बाद में ही वी आर सफरिंग फ्रॉम द स्लीपिंग सिकनेस, okay, our sleeping sickness will get disturbed by this parasite because this enters to our CNS. now ये ब्लड में आ गया और ब्लड में आके इसने बाइनरी फिजन किया जिससे इसका नंबर बढ़ गया। अब ब्लड में आने के बाद में दो स्टेजेस आती है। एक आएगी हेमोलिम्फेटिक स्टेज, एक आएगी न्यूरोलॉजिकल स्टेज। हीमोलिम्फेटिक स्टेज में क्या होगा? हीमोलिम्फेटिक स्टेज में इट विल बी प्रेजेंट इन आवर ब्लड और विल बी सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस एंड जॉइंट पेन and headache, not jaundice, okay, will be suffering from joint pain, headache and also intermittent fever. What do you mean by intermittent fever? Interval type of fever, like 2 दिन पहले आया, फिर उसके बाद में ब्रेक लिया, फिर वापस 2 दिन बाद आया, फिर उसके बाद में एक और दिन ब्रेक लिया या 2 और दिन ब्रेक लिया, फिर उसके बाद में फीवर आया। तो दिस टाइप ऑफ फीवर इज नोन एज इंटरमिटेंट टाइप ऑफ फीवर। एक पर्टिकुलर इंटरवल के टाइम, पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में हमें आ रहा है, तो दैट टाइप ऑफ फीवर इज नोन एज इंटरमिटेंट टाइप ऑफ फीवर, ओके।
तो दीज आर द सिम्टम्स जब वो हमारे हीमोलिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करेगा। अब हीमोलिम्फेटिक है तो ब्लड में प्रेजेंट है, ब्लड में प्रेजेंट होने से हमारी ये सब चीजें अफेक्टेड हो रही है। जॉइंट पेन, विल बी सफरिंग फ्रॉम सम जॉइंट पेन्स और एंड ऑल्सो हेडेक and intermittent fever, and it will also affect our limbs. We will be having swollen limbs, swollen type of lymph nodes. Okay, now अब न्यूरोलॉजिकल स्टेज, अब वो हमारे CNS में कैसे जा सकता है? हमारा CNS बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। एक्चुअली वी आर हैविंग मेनी काइंड ऑफ बैरियर्स इन अवर बॉडी। ओके, हमारा इम्यून सिस्टम दो टाइप्स का होता है, एक इनेट होता है और एक एक्वायर्ड होता है। ओके, तो इनेट सिस्टम में भी वी आर हैविंग मेनी काइंड ऑफ बैरियर्स। हमारे पास में बहुत सारे बैरियर्स हैं, एनाटॉमिकल बैरियर्स हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं, सेल्यूलर बैरियर्स हैं एंड इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस हैं। तो दीज आर द बैरियर्स ऑफ अवर इम्यून सिस्टम। ओके, अब इन सारे बैरियर्स को और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी क्रॉस करके ये पैरासाइट हमारे CNS तक कैसे पहुंच सकते हैं? ओके, हम ये मान सकते हैं कि इन सीवियर कंडीशंस इसने हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको ब्रेक कर दिया। बट हाउ कैन दिस रीच टू अवर CNS? अवर ब्रेन इज ऑल्सो बीइंग वेरी मच प्रोटेक्टेड, नो? तो बाय क्रॉसिंग आवर ब्लड ब्रेन बैरियर, हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ये पहुंच जाएगा हमारे CNS में। ब्रेन के पास में एक बैरियर होता है जिससे वो ब्लड को अंदर आने से रोकता है। तो अगर ये वाला बैरियर क्रॉस हो जाएगा तो ब्लड के साथ में ये भी पैरासाइट भी ब्रेन में आ जाएगा। ओके, अब व्हाट इज दिस ब्लड ब्रेन बैरियर? देयर आर सम काइंड ऑफ सेल्स इन आवर नर्वस सिस्टम दैट आर नोन एज न्यूरोग्लियल cells. That neuroglial cells are of two types, like this. Some kind of neuroglial cells are present. These neuroglial cells we can say of two types. One is of microglia and another one are macroglia. Okay, these microglia we can say these are the macrophages जो phagocytosis perform करते हैं, and these macroglia, these macroglia is having two types of cells. One is having oligodendroglia and another one are astrocytes. These astrocytes are responsible for the formation of this blood brain barrier. Okay, ऐसे बनता है ब्लड ब्रेन बैरियर। देयर आर सम सेल्स, न्यूरोलॉजिकल सेल्स होते हैं जो दो टाइप्स के होते हैं, माइक्रोग्लिया एंड मैक्रोग्लिया। मैक्रोग्लिया जो है वो ओलिगोडेंड्रोग्लिया और एस्ट्रोसाइट्स दो पार्ट्स में फिर डिवाइड होते हैं। एंड दिस ओलिगोडेंड्रोग्लिया इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ इन आवर न्यूरॉन्स। Okay, it is not of our concern now. The astrocytes, these astrocytes are responsible for the formation of this blood brain barrier. Okay, अब जब ये blood brain barrier को भी क्रॉस कर देगा तो ये आएगा हमारे CNS में and then it will affect our sleeping cycle, we can say. Okay, after that our sleeping cycle will get disturbed. Okay, now neurological stage में आया, it crossed our blood brain barrier and entered into CNS, we can say. Okay, now by binary fission it has increased its number, और नंबर इंक्रीज करने के बाद में ये आया हेमोलिम्फेटिक सिस्टम में या फिर न्यूरोलॉजिकल स्टेज में। तो जब ये हमारे ब्लड में ही है, मान लीजिए ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। ओके, अब ब्लड में प्रेजेंट होने के बाद में अगेन इफ एनी अनदर से फ्लाई विल कम एंड बाइट दैट इन्फेक्टेड पर्सन, नाउ दिस पर्सन इज इन्फेक्टेड, नो? अब इन्फेक्टेड पर्सन को अगर कोई दूसरा से फ्लाई आकर काटेगा तो ये जितना भी
पैरासाइट है और वी कैन से दैट मेटासाइक्लिक ट्राइपेनोमास्टिगॉट्स हैं, इन द व्हेन दे कम इनटू द ब्लड दे आर कन्वर्टेड इनटू ट्राइपेनोसोमा मास्टिगॉट्स. ओके, This metacyclic trypanosoma mastigotes will convert into trypanosoma mastigotes when they come into the blood. Now, अब जब ये trypanosoma mastigote condition में आ गए हैं, now this will be taken up by one fly. ओके, नाउ ये ट्राइपेनोसोमा मास्टिगोट जो है वो अब सेसे फ्लाई के मिडगट में आ गए हैं. वी कैन से दैट दे आर नाउ प्रेजेंट इन द मिडगट. into the midgut of the sese fly. Now अब मिडगट में आने के बाद में दे आर कन्वर्टेड फ्रॉम, पहले कंडीशन थी मेटासाइक्लिक. ओके, नाउ अब मिडगट में आने के बाद में ये ट्राइपेनोसोमा मास्टिगोट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोसाइक्लिक मास्टिगोट. ओके, मिडगट में आया, मिडगट में दे कन्वर्टेड इनटू प्रोसाइक्लिक मास्टिगोट्स, और इसको हम बोल सकते हैं प्रोसाइक्लिक ट्राइपेनोसोमा मास्टिगोट भी बोल सकते हैं. ओके, या तो प्रोसाइक्लिक मास्टिगोट्स बोले या फिर प्रोसाइक्लिक ट्राइपेनोसोमा मास्टिगोट्स बोले, दोनों एक ही बात है. क्लियर? नाउ अब प्रोसाइक्लिक मास्टिगोट्स जो है वो फिर से बाइनरी फिजन करेंगे एंड दे विल आल्सो इंक्रीज देयर नंबर. ये भी बाइनरी फिजन करेंगे और अपना नंबर बढ़ाएंगे इसके मिडगट में, इनटू द मिडगट ऑफ आवर सेसे फ्लाई वी कैन से. नाउ अब जब ये बाइनरी फिजन कर रहे हैं तो इनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ेगा. They will be having the increment in their number, no? तो क्या होता है, अब इनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने से इनका जो मिडगट रहता है that will be some kind of bulgy, वो थोड़ा सा बल्जी हो जाता है. उसके बाद में ये दे डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द मिडगट. ओके, नाउ when they are having the binary fission and when they increased their number and this procyclic mastigotes diffuses from the midgut and they entered now into the blood. Normal from the midgut they diffuses out and come out into the main body, that is we can say that coelom. अब वो blood में present है. Okay, now from the blood they can move in any part of the body. वो सेसे फ्लाई के भी कोई भी पार्ट में मूव कर सकते हैं. तो ब्लड में आने के बाद में दे वेंट इनटू द सलाइवरी ग्लैंड. ओके, सलाइवरी ग्लैंड में ब्लड से वो सलाइवरी ग्लैंड में चले गए एंड इन दिस सलाइवरी ग्लैंड दे कन्वर्टेड इनटू द एपीमास्टिगोट्स. सी ट्राइपेनोसोमा मास्टिगोट कंडीशन में वो हमको एक इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड से मिला था इन द सेसे फ्लाई. ओके, सेसे फ्लाई ने ट्राइपेनोसोमा मास्टिगोट कंडीशन में उसको एक इन्फेक्टेड पर्सन से सक किया. आफ्टर सकिंग दैट ट्राइपेनोसोमा मास्टिगोट डायरेक्टली एंटर इनटू द मिडगट ऑफ दैट सेसे फ्लाई. अब मिडगट में जाने के बाद में दैट ट्राइपेनोसोमा मास्टिगोट गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोसाइक्लिक ट्राइपेनोसोमा मास्टिगोट, और वी कैन से दैट प्रोसाइक्लिक मास्टिगोट भी बोल सकते हैं हम उस सिचुएशन को. नाउ प्रोसाइक्लिक मास्टिगोट जब अपना नंबर बढ़ाएंगे, उन्होंने भाई बाइनरी फिशन करके वो भी अपना नंबर बढ़ाएंगे ना इसमें.
ओके अब उन्होंने अपना नंबर बढ़ाया इनटू द मिडगट, पर मिडगट बल्जी हो जाता है तो उसके कारण दे डिफ्यूजेस आउट एंड कम इनटू द सीलोम और वी कैन से इनटू द बॉडी कैविटी। अब नॉर्मल बॉडी कैविटी में क्या होगा, ब्लड ही होगा, एंड आफ्टर कमिंग इनटू द ब्लड what they do, they spread out into the whole body। अब whole body में spread out हुए हैं, but now in the salivary gland, sorry, when they come into the blood, no, not here, not epimastigotes, when they come into the blood only they will be converted into the epimastigotes। now ब्लड में आने के बाद में उनकी कंडीशन हुई एपीमेस्टिगोट्स। ओके ना, अब ब्लड में जब एपीमेस्टिगोट्स प्रेजेंट है और वो जब फिर सलाइवरी ग्लैंड में जाएंगे, ऐसे तो वो पूरी बॉडी में मूव कर सकते हैं, ओके, बट व्हेन दे विल गो इनटू द सलाइवरी ग्लैंड, देन इनटू द सलाइवरी ग्लैंड दे आर अगेन कन्वर्टेड इनटू मेटासाइक्लिक ट्राइपेनोसोमा मेस्टिगोट। जब एपीमेस्टिगोट सलाइवरी ग्लैंड में आया, सलाइवरी ग्लैंड में आने के बाद में वो चेंज हो जाएगा, अपना फॉर्म चेंज करेगा। तो जब उसने अपना फॉर्म चेंज किया एपीमेस्टिगोट से, दैट कन्वर्टेड इनटू द मेटासाइक्लिक ट्राइपेनोसोमा मेस्टिगोट, और मेटासाइक्लिक ट्राइपेनोसोमा मेस्टिगोट होती है इनटू द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ सेसे फ्लाई। अब ये सेसे फ्लाई इज नाउ रेडी टू इन्फेक्ट अनदर पर्सन ऑल्सो, और वी कैन से दैट रेडी टू इन्फेक्ट अनदर हेल्दी ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। Okay, so this was all about the life cycle of our Trypanosomia brucigambans। सबसे पहले हमने देखा कि एक सेसे फ्लाई आई दैट वाज बीइंग इन्फेक्टेड और दैट वाज कंटेनिंग द मेटासाइक्लिक ट्राइपेनोसोमा मेस्टिगोट्स इन हर सलाइवरी ग्लैंड, उसके सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट था। सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होने के बाद में उसने एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया, शी बाइट वन इन्फेक्टेड पर्सन। After biting, that infected person blood was enriched with the metacyclic trypanosoma mastigotes। Okay, now in the blood of that person, that metacyclic trypanosoma mastigote will get converted into trypanosoma mastigote। Okay, अब convert होने के बाद में वो उनका नंबर बढ़ाएंगे। ओके नाउ अब उन्होंने अपना नंबर बढ़ाया तो दो जगह पे वो जा सकते हैं, वो हमारे दो सिस्टम्स को अफेक्ट कर सकते हैं, वी कैन से। एक होगा हेमोलिम्फेटिक सिस्टम और एक होगा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। हेमोलिम्फेटिक सिस्टम मतलब नॉर्मली दो इट इज अफेक्टिंग टू आवर lymph nodes as well as we are getting the intermittent kind of fever and joint pain, but तब तक भी हमारा CNS अफेक्ट नहीं हुआ था, तो हम कह सकते हैं इट इज अ सिम्टमिक कंडीशन, बोल सकते हैं कि दैट वी आर गेटिंग द सिम्टम्स ऑफ एनी काइंड ऑफ डिसीज इन आवर बॉडी। हमको अभी सिर्फ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं व्हेन इट इज अफेक्टिंग आवर हेमोलिम्फेटिक सिस्टम। ओके, तो अब हेमोलिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करने के बाद में भी अगर वी आर नॉट कंसर्न्ड विद आवर हेल्थ, तो वो क्या करेगा, उसका और ज्यादा नंबर बढ़ाएगा। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे उसने बाइनरी फिजन हो गया एंड देन स्टॉप्स, बाइनरी फिजन स्टॉप होने के बाद में वो अफेक्ट करेगा, कंटिन्यूअसली इट इज गेटिंग डिवाइड ऑल्सो एंड सम ऑफ देम आर अफेक्टिंग दिस ऑल्सो। और जैसे ही टाइम ज्यादा हुआ, आफ्टर सम टाइम, नाउ दिस विल गोइंग टू अफेक्ट अवर न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ऑल्सो बाय क्रॉसिंग अवर ब्लड ब्रेन बैरियर। ओके, and this blood brain barrier is formed by astrocyte cells of our nervous system। okay, now and entered into our CNS। अब ये ब्लड में है, हमारे ब्लड में भी है, ह्यूमन बीइंग के दैट वन विच वाज अफेक्टेड बाय दैट ट्राइपेनोसोमा उसके ब्लड में प्रेजेंट है। ओके, अब ब्लड में प्रेजेंट होने के बाद में व्हेन द अनदर सेसे फ्लाई विल कम एंड बाइट दैट इन्फेक्टेड पर्सन, तो उससे क्या होगा, जो ट्राइपेनोसोमा मेस्टिगोट्स उसके ब्लड में ट्रैवल कर रहे थे या ब्लड में थे, दैट विल बी टेकन अप बाय दिस सेसे फ्लाई। ओके, नाउ दिस सेसे फ्लाई, अब इसकी ट्राइपेनोसोमा की लाइफ साइकिल सेसे फ्लाई में स्टार्ट करते हैं। तो जब वो उसके
when that sese fly taken up some of the blood from the infected person, then that will be directly entered into the midgut, और midgut के जाने midgut में जाने के बाद में that again converted into procyclic trypanosoma mastigot and procyclic converted into epimastigotes, and epimastigot when entered into the salivary gland, जब वो salivary gland में जाएगा तभी वो metacyclic trypanosoma mastigot में convert होगा, and this is only the infective stage for our body. Okay, now अब जब उसने न्यूरोलॉजिकल स्टेज को अफेक्ट कर दिया है तो इससे क्या होगा, वी विल बी हैविंग अ डिस्टर्ब्ड काइंड ऑफ स्लीपिंग, स्लीपिंग सिकनेस वी कैन से, हमारी स्लीपिंग साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. व्हाट टाइप ऑफ साइकिल वी आर हैविंग, दैट वी आर बीन अवेकन ड्यूरिंग डे टाइम एंड इन नाइट वी यूज्ड टू स्लीप. But when we are affected from the sleeping sickness kind of disease, then our sleeping cycle will be just opposite. We will be awakened at the time of night, or in the night time we will be awakened, and in the daytime we will be sleeping. Up to we can say that 14 to 18 hours or 20 hours we are sleeping in this kind of disease. So all of our time will be wasted in the sleeping only. So the person in whose body, or the person who is suffering from, in whose body the trypanosoma entered, that person will be suffering from the trypanosomiasis, and that is also known as African sleeping sickness. These are some diseases or we can say these are some symptoms of this trypanosomiasis. Okay, तो याद रखने वाली इसमें बातें क्या हुई, what is the name of that disease, what is the causative agent of that disease, what are the two hosts of that disease and the one carrier. Carrier is also one kind of host only. our हमारा carrier यहाँ पे क्या है, सेसे fly is our carrier and that is our host only. एंड और हमने एक बात करी थी रिजर्वायर ऑर्गेनिजम्स की, दैट इज वो एंटीलोप हो सकता है, काऊ भी हो सकता है, या कोई और रिजर्वायर एनिमल भी हो सकता है. ओके, तो जब सेसे फ्लाई किसी हेल्दी पर्सन को बाइट कर सकता है तो क्या सेसे फ्लाई इन एनिमल्स को बाइट नहीं कर सकता? यस, इट कैन बाइट दीज एनिमल्स ऑल्सो, ये इनको भी बाइट कर सकता है. तो अगर ह्यूमन बींग्स को बाइट करने के बाद में उन्होंने इसको बाइट कर लिया, नॉट बाद में, पैरेलली वी कैन से, ओके, ह्यूमन बींग्स को भी बाइट करेगा और इनको भी बाइट करेगा. तो जब इनको बाइट करेगा तो क्या इनको अफेक्ट होगा? नो, दीज टू रिजर्वायर्स विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय दिस ट्राइपेनोसोमियासिस और वी कैन से बाय दिस कॉजेटिव एजेंट. Okay, these will be the free from diseases, they are only the carriers. These are only the reservoir of this disease. अब ये reservoir है तो next time when any of the sese fly will come, तो क्या ये इसमें से अपना parasite ले सकता है? Yes, if any of the sese fly will again come, then जैसे उसने ह्यूमन बीइंग में से ब्लड सक किया था वैसे वो इस रिजर्वायर में से भी ब्लड सक करेगा एंड फ्रॉम दिस रिजर्वायर इट विल गोइंग टू बाइट सम अदर हेल्दी पर्सन. ओके, so this was all about our disease which was caused by parasites. We have studied some diseases of parasites are amoebiasis and malaria and giardiasis, and this fourth one was trypanosomiasis. Now we will study some more diseases.